Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss some important objective type questions based on the topic seek and tell function. As this is an important topic of this chapter, you will definitely get a question in your exam from seek and tell. So I have tried to make a separate video for this concept. And the detailed explanation of seek and tell function regarding this, I have already uploaded a video. I will provide you the link of that video in my description also. So you can watch that video for detailed explanation. But in this video, we will just cover the brief introduction of seek and tell function. Now see beta, whenever we have to randomly access the data in the file, we are having two functions, seek and tell. Seek function is used to move the file pointer to a particular location. अगर मुझे किसी particular location पर अपने file pointer को move करना है, so for that we are having the seek function. To move the file pointer to a particular location. Next is function. It tells the location of the current file pointer. कि मेरा पॉइंटर करंटली किस लोकेशन पर है, ये उसकी पोजीशन मुझे बताएगा. सो टेल फंक्शन इज यूज्ड टू टेल द लोकेशन, करंट लोकेशन रादर, टू टेल द करंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. एंड सीक फंक्शन में मेरे पास बेटा टू आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. वन इज ऑफसेट वैल्यू एंड सेकेंड इज फ्रॉम व्हाट. फ्रॉम मीन्स कहां से मूव करना है, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड और फ्रॉम मिडल. बाय डिफॉल्ट जो फ्रॉम व्हाट की वैल्यू है दैट इज 0 और ऑफसेट मीन्स कितने बाइट्स हमने उसको मूव करना है. नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव, कितने बाइट्स हमने मूव करना है फाइल पॉइंटर को. और जो फ्रॉम व्हाट आर्ग्यूमेंट है उसमें आपकी कौन सी वैल्यूज आती हैं, 0, 1 एंड 2. 0 मीन्स आप उसको बिगिनिंग से कितने बाइट्स मूव कर रहे हो एंड 1 मीन्स आप उसको मिडल से कितने पॉइंट्स मूव कर रहे हो एंड 2 मीन्स आप उसको एंड से कितने पॉइंट मूव कर रहे हो. अगर मैं ऑफसेट में पॉजिटिव वैल्यू लिखूं दैट मीन्स वी आर मूविंग द फाइल पॉइंटर फॉरवर्ड एंड इफ आई विल राइट द नेगेटिव वैल्यू देन इन द ऑफसेट तो देन इट मीन्स द बैकवर्ड, कि मैं उसको उतने बाइट्स पीछे मूव कर रही हूँ. एंड दिस सीक फंक्शन का जो ये ऑफसेट एंड फ्रॉम व्हाट आर्ग्यूमेंट है, दिस विल इवन एग्जीक्यूट with the when you try to open the text file in the binary mode. For this reason I have made a special video, you can watch that. और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना, it gives the motivation to do more. So let's start with our first question. Dash method is used to random access of data in a file. अगर मुझे फाइल में से कहीं पर भी एक randomly डेटा को एक्सेस करना है, so for that we are having the seek function. Now next beta, the offset argument of seek method indicates the number of bytes to be moved. ये मेरा offset argument मैंने आपको बताया, ये यही बताते हैं कि how many bytes I have to move my file pointer. So this is true. If the second argument of seek is set to 2, तो then beginning of file would be taken as seek position. This is false. कि अगर हम second argument में यहाँ पर value 2 ले तो in the question it is saying कि वो beginning से move करेगा. No, it will move from the end 2 के लिए. And for beginning it's 0. Even you can skip this argument. तो by default value will be 0. Now moving on to the next question. Which statement is used to change the file pointer to an offset value from the start. अब मुझे स्टार्टिंग से करना है, ठीक है, तो दैट मीन्स उसके लिए फ्रॉम व्हाट वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 0. तो दिस ऑप्शन विल बी माय करेक्ट ऑप्शन. ऑफसेट वैल्यू मीन्स जितने बाइट्स हमें मूव करना है
और 2 होगा फ्रॉम एंड, 1 फ्रॉम मिडल एंड 0 फ्रॉम बिगिनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव द करंट पोजीशन विद इन द फाइल. कि मेरा पॉइंटर किस लोकेशन पर है, करंट पोजीशन चाहिए. फॉर दैट वी आर हैविंग seek फंक्शन, टेल फंक्शन, LOC फंक्शन और पोजीशन फंक्शन. तो करेक्ट ऑप्शन इज टेल फंक्शन. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ नो आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड टू द सीक मेथड. अब ये मेरा सीक मेथड है बेटा, ठीक है. अगर मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट ना पास करूं तो देन इट विल टेक 0 बाय डिफॉल्ट. बट इन क्वेश्चन इट इज सेइंग कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो देन इट विल जनरेट द एरर. आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना जरूरी है, और वो कौन सा, नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव, ऑफसेट आर्ग्यूमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कोड. अब आपको test.txt फाइल गिवन है एंड यू हैव ओपनड इन राइट प्लस मोड. ये टेक्स्ट हमने राइट करा दिया, ठीक है. f.seek -3, दैट मीन्स एंड से 3 कैरेक्टर्स बैक. और उसके बाद हमने क्या करा, f.read 2. नाउ रीड द क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 एंड गिव द आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करना है, तो यू कैन राइट इट हियर. स्टेटमेंट 1 मेरा क्या काम कर रहा है बेटा, स्टेटमेंट 1 इज यूज्ड टू मूव द फाइल पॉइंटर कितने 3 कैरेक्टर्स बैक, और यू कैन राइट 3 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम द एंड, ठीक है. ऑफसेट वैल्यू -3 मीन्स 3 कैरेक्टर्स बैक, और यहाँ पर फ्रॉम व्हाट जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो क्या गिवन है, 2. तो दैट मीन्स एंड से वो 3 कैरेक्टर्स को क्या करेगा बेटा, बैकवर्ड मूव. और स्टेटमेंट 2 का आपने आउटपुट बताना है. अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर जस्ट सी दिस केयरफुली, ये एंड हो गया, 3 कैरेक्टर्स बैक, 1 2 और ये 3. अब मेरा फाइल पॉइंटर यहाँ पर है बेटा, ठीक है. अब मैंने रीड फंक्शन से 2, दैट मीन्स 2 कैरेक्टर्स रीड करे, तो दैट मीन्स D और E. तो आपका जो फाइनल आंसर होगा फॉर स्टेटमेंट 2 दैट इज D एंड E. दिस विल गेट प्रिंटेड, और यहाँ पर आपने इसको, दिस इज इन स्ट्रिंग फॉर्म, सो देयर इज नो नीड टू राइट द आंसर इन द सिंगल कोट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Neha intends to position the file pointer to the beginning of a text file. अब उसको कहाँ से मूव करना है बेटा, beginning से. Write Python statement for the same, assuming f is the file object. तो f.seek अब बिल्कुल beginning पर चाहिए. कितने बाइट्स वो उसको डिपेंड करेगा हमने कितने वहां पर मूव करने हैं. जनरली अगर मुझे पॉइंटर को beginning पर मूव करना हो, so for that the syntax is f.seek 0. ठीक है, मीन्स ये 0 कौन सा, बिगिनिंग वाला नहीं, ऑफसेट वैल्यू वाला. ऑफसेट मीन्स मुझे कितने बाइट्स मूव करना है, अभी मूव तो करना ही नहीं है, मुझे जस्ट पॉइंटर को बिगिनिंग पर लेकर आना है. ठीक है, यहाँ सपोज ये मेरा टेक्स्ट है बेटा फाइल में, दिस इज माई टेक्स्ट रिटन इन द फाइल, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको पॉइंटर को बिगिनिंग पर मूव करना है, तो मीन्स मुझे पॉइंटर यहाँ पर लेकर आना है. तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने स्किप कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू लेगा बेटा, 0. और अब मुझे इसको मूव कराना है कितने बाइट्स, अभी तो मूव कराने के लिए नहीं बोला, जस्ट क्या बोला, बिगिनिंग पर लेकर आना है. सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर एज 0. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, इवन ये वाले लास्ट ईयर आ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा वांट्स टू मूव द फाइल पॉइंटर 10 कैरेक्टर्स बैकवर्ड फ्रॉम द करंट लोकेशन. करंट लोकेशन से 10 कैरेक्टर्स पीछे जाना है, ठीक है. एंड देन शी वांट्स टू रीड 13 कैरेक्टर्स, उसके बाद 13 कैरेक्टर्स को रीड करना है उसने. हेल्प हर टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दैट. assume fp is the file pointer. If the name of the file pointer is given to you in the question, so then you have to use that file pointer only. अब देखो मुझे फाइल पॉइंटर को मूव करना है, so for that seek function will be used. ऑफसेट वैल्यू में क्या आएगा बेटा, 10 कैरेक्टर्स बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स -10, एंड फ्रॉम द करंट लोकेशन दैट मीन्स 1. इससे तो मेरा पॉइंटर मूव हो जाएगा करंट लोकेशन से 10 कैरेक्टर्स बैक.
Now after that she wants to read 13 characters. fp dot read और उसके बाद कितने characters? 13. If you want you can even print this also. fp dot read और कितने characters read करने हैं बेटा? 13. तो you have to write the number of characters here जो हम read function में argument पास करते हैं कि कितने characters मुझे उसमें read करने हैं. Now next question. Observe the following code carefully. What will be the output? अब हमने फाइल को R+ मोड में ओपन किया, ठीक है, ये लिखा अब हमने. अब इसमें आप कहोगे सीक 0 की बिगिनिंग पर मूव कर दिया, फिर सारा का सारा डेटा रीड कर दिया, बट इसके आउटपुट में आपको एरर शो होगा. रीजन बीइंग दैट यहाँ पर मैंने फाइल को क्या कर दिया बेटा, सी हियर, यहाँ पर हमने फाइल को क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने सीक फंक्शन को यूज किया. अगर मेरी फाइल क्लोज है तो आफ्टर दैट आई कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द फाइल. ठीक है, तो अगर मुझे इसको करेक्ट करना है, सो फॉर दैट वी हैव टू मूव दिस क्लोज फंक्शन हियर आफ्टर दिस स्टेटमेंट. तो व्हाट विल यू राइट कि दिस प्रोग्राम विल रेज एन एरर बिकॉज द फाइल इज क्लोज. तो सीक फंक्शन और रीड फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. So to make this program error free, you have to shift the statement f.close at the end. और अगर वो end में move हो जाएगी तो भी इसमें print function given नहीं है, तो आपका यहाँ पर कुछ भी print नहीं होगा. ठीक है, beginning पर pointer आ जाएगा आपका यहाँ पर, seek 0 से आपका pointer यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ये read function सारा का सारा डेटा क्या कर देगा, read कर देगा. अगर ये रीड फंक्शन आपको प्रिंट फंक्शन में गिवन होता या इसकी वैल्यू रिटर्न करके हम इसको प्रिंट कराते तो देन इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट, अदरवाइज वो अब आपका आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली and write the output of the following. ठीक है, अब एक फाइल को हमने, और क्या है, the name of my file is fl1.txt that I have opened in the write mode. उस फाइल में हमने ये टेक्स्ट लिखवा दिया बेटा. And you know this thing कि if we are going to write the data in the file using write function, तो उसमें इसके बाद means world और ये m, ये उसी के आगे कंटिन्यू रहेगा. मीन्स अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा मेरे फाइल में, हील द वर्ल्ड, इसी के आगे प्रिंट हो जाएगा मेक इट अ स्पेशल प्लेस. ये सारा एक ही लाइन में आएगा क्योंकि हमने कहीं पर एक्सप्लिसिटली बैकस्लैश n को यूज नहीं किया है. और स्पेशल प्लेस के बाद ही आ जाएगा बेटा फॉर यू एंड मी, और इसी के साथ आ जाएगा एंड द एंटायर ह्यूमन रेस. इट विल प्रिंट लाइक दिस. अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे. हमने फाइल को क्लोज कर दिया, देन वी हैव ओपन द सेम फाइल इन द रीड मोड. उसी फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया. ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सबसे पहले लाइन नंबर 8, this one, fl2.read 5, that means it will read the 5 characters. अब स्टार्टिंग में मेरा पॉइंटर कहां पर है बेटा, बिगिनिंग पर, तो फ्रॉम बिगिनिंग इट विल रीड 5 characters, 1 2 3 4, और फिफ्थ मेरा क्या होगा बेटा, स्पेस. तो इट विल प्रिंट दिस. ठीक है, आपका साथ में क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा, हील, और साथ में क्या आ जाएगा, स्पेस. और ये आपका प्रिंट किस स्टेटमेंट के थ्रू होगा, इस स्टेटमेंट के थ्रू. ओके, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस. इस स्टेटमेंट के थ्रू ये आपका प्रिंट हो जाएगा और साथ में स्पेस भी प्रिंट होगा. आफ्टर दैट हमने रीड फंक्शन लगाया और 15 कैरेक्टर्स को रीड करा. अब मेरा पॉइंटर कहां पर है बेटा, टी के स्टार्टिंग में. तो 15 कैरेक्टर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और 15th पर मेरा क्या आ रहा है बेटा i। अब वो आपका किस वेरिएबल में स्टोर हो गया r2 में। अब विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा fl2 डॉट सीक 2 दिस 12 स्टेटमेंट। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं गिवन, दैट मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग इट विल मूव। और कितने कैरेक्टर्स मूव करना है 2 कैरेक्टर्स। अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया तो मेरा ये 2 कैरेक्टर्स मूव करके यहाँ पर आ गया। इसके बाद मैंने 8 कैरेक्टर्स रीड करे। अब 8 कैरेक्टर्स रीड करो 1 2 फिर 3 देन 4 5 6 7 8। तो ये आपका प्रिंट कर देगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये R3 में आ गया। अब R3 की वैल्यू को इस स्टेटमेंट के थ्रू वो आपकी क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी फ्रॉम हियर। ठीक है, ऑल द और W ये। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट टेल फंक्शन। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। टेल फंक्शन से हमने क्या किया, जो मेरी करंट पॉइंटर की लोकेशन है उसको प्रिंट कराएंगे। अब करंट पॉइंटर की लोकेशन देखो कहां से आएगी। अब सबसे पहले मैंने क्या किया था 2 कैरेक्टर्स मूव किया बिगिनिंग से यूजिंग दिस स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स चेक करो दिस। ठीक है, पहले मैंने क्या करा 2 कैरेक्टर्स मूव करा बिगिनिंग से और फिर मैंने 8 कैरेक्टर्स रीड कर लिए। तो मेरा पॉइंटर टोटल कितने कैरेक्टर्स मूव हुआ 2 + 8 10। तो आपका ये जो टेल फंक्शन है ये क्या प्रिंट कर देगा बेटा 10 दिस। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा सीक 15। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं है, दैट मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग इट विल मूव द पॉइंटर टू 15 कैरेक्टर्स। और फिर R5 में क्या है बेटा टेल फंक्शन और R5 की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब वो क्या प्रिंट करेगा 15। ठीक है, दैट मीन्स अब वो मेरा किस कैरेक्टर पर है 15 लोकेशन पर। अब उसके बाद सीक 20। अब फिर मैंने उसको बिगिनिंग से कितना मूव करा दिया 20 कैरेक्टर्स। और 20 कैरेक्टर्स मूव कराने के बाद मैंने 10 कैरेक्टर्स रीड करे। तो अब आप क्या करोगे यहाँ से 20 कैरेक्टर्स काउंट कर लेना जितने होंगे फ्रॉम हियर। तो 20 कैरेक्टर्स काउंट करने के बाद जहां पर भी पॉइंटर होगा उसके आगे वो 10 कैरेक्टर्स और रीड कर लेगा। ठीक है, तो वो आपका ये प्रिंट हो जाएगा TASPECIA। अब उसके बाद मुझे क्या करना है पॉइंटर की लोकेशन प्रिंट करानी है। अब पॉइंटर की लोकेशन कैसे चेक करोगे 20 कैरेक्टर्स मैंने बिगिनिंग से मूव करा और 10 कैरेक्टर्स मैंने फर्दर रीड करे। 20 + 10 30। तो 30 आपकी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जहां आपका पॉइंटर था A पर था उस A के बाद मुझे सारा का सारा डेटा प्रिंट करके रीड करना है। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर L से लेकर के E तक ये सारा का सारा डेटा आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इन पाइथन ऑल्सो टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। आप इसमें वैल्यूज चेंज करके देखो, फिर देखो कि आपका कहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक माय वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.